آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ ویسے میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، کوثر کے لیے میرے دل میں احترام تھا، صرف احترام، اور دوسری صبح مجھے مایوسی نہ ہوئی۔ کوثر کا رویہ تو خراب نہ تھا لیکن وہ حسب معمول بے نیاز تھی۔ اس صبح بھی میں نے ناشتہ اپنے کیبن میں کیا تھا۔ باہر شور ہو رہا تھا، زیادہ تر مسافر عرصہ پر جمع تھے۔ جدہ آ گیا تھا۔ سامان درست کر لو بھائی، ہم جدہ پہنچ گئے ہیں، نواب صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، میں نے کہا۔ نواب صاحب کا سامان باندھنے لگے۔ کوثر بیٹے ان کی مدد کرو، نواب صاحب بولے۔ سامان اتنا زیادہ تو نہیں ہے ابو، اس نے تنک کر کہا۔ میں عرصے پر جا رہی ہوں، اور وہ نواب صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر نکل۔ یا خدا نہ جانے تم نے اسے کون سی مٹی سے بنایا ہے، نواب صاحب پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ کوثر بیوی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب، میں ابھی سامان باندھ دیتا ہوں۔ تم بھی کیا سوچتے ہو گے سرفراز؟ نواب صاحب، آپ کی عنایت نے مجھے گستاخ کر دیا ہے، اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ ہاں ضرور۔ میں کوثر بیوی کے اس رنگ کا عادی ہو گیا ہوں۔ کل کی بدلی ہوئی کوثر بیوی مجھے زیادہ پسند نہیں آئی۔ یہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے شریف خون کی آواز ہے، تمہاری اپنی بھی شخصیت ہے، اسے مجروح ہوتے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ نہایت عاجزی سے عرض کر رہا ہوں نواب صاحب، کوثر بیوی میری شخصیت کی تشکیل کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب حیرت سے بولے۔ میں ایک خودسر انسان تھا نواب صاحب، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ میری خودی، میری سرزوری کو پاش پاش کرنے والی کوثر بیوی ہیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ورنہ وہ بھی مل سکتے ہیں جو تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں گے، تمہیں کتے کی طرح ذلیل سمجھیں۔ میں نے کہا۔ نواب صاحب لرز کر رہ گئے۔ اس لیے میں نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں کہ میں چور چور ہو جاؤں، میری خودی کے ریشے اس انداز سے بکھر جائیں کہ پھر ان میں زور نہ پیدا ہو۔ نواب صاحب دیوانوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو تم، کیا ہو سرفراز؟ بتا دو میرے بیٹے، بتا دو میرے بیٹے۔ جو کچھ بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں نواب صاحب، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں پلٹا اور پھر اپنے کیبن میں جانے کے لیے نکلا، لیکن دروازے پر کوثر کھڑی تھی۔ میں چونک پڑا۔ کوثر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ کوثر بیوی، میں نے حیرت سے کہا۔ میں شرمندہ ہوں سرفراز صاحب، میں شرمندہ ہوں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے کوثر بیوی کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ آئیے، کوثر نے کہا اور میرے ساتھ میرے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ میں حیران سا اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس نے بے تکلفی سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ارے میں شدید حیرت سے بولا۔ جو کچھ کر رہی ہوں کرنے دیجیے، اس نے کہا۔ لیکن کوثر بیوی، براہ کرم باہر نکل جائیے، اس نے تنک کر کہا۔ بہتر ہے، میں نے بادل نخواستہ کہا اور پھر کیبن سے باہر نکل آیا۔ شاید اس نے میری گفتگو سن لی تھی، شاید اس بار کا حملہ شدید ہے، لیکن محترمہ کوثر، آپ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہتی تو بہتر تھا۔ یہ لچک خود آپ کو مہنگی پڑے گی، ہاں یہ جھکاؤ خود آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگا، میں نے دل ہی دل میں کہا اور پھر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ جہاز وصل دے رہا تھا، بندرگاہ قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوثر صاحبہ باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے آپ کا سارا سامان درست کر دیا ہے، بچوں کے انداز میں بولی۔ سخت شرمندہ کیا آپ نے مجھے، فضول باتیں، آہستہ سے بولی اور نواب صاحب کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جدے میں ہمارا استقبال حافظ احمد سراج السعدی نے کیا۔ چٹان جیسے سینے اور خاصے ڈھیل ڈول کے باوجود اس پرتلے انسان کی آنکھوں سے دلیری کا احساس ہوتا تھا۔ اس کا مکان بھی کافی خوبصورت تھا۔ تفصیلی تعارف سے پتہ چلا کہ وہ لانچوں کا تاجر ہے۔ اس کے کارخانے میں ماہی گیری کی لانچیں بنتی ہیں۔ نواب صاحب کے ساتھی مہم جوؤں میں سے ایک ہے اور یہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حافظ احمد السراج السعدی کو ہم لوگ صرف احمد صاحب کہتے تھے۔ بڑا مہمان نواز، عربوں کی روایت کے عین مطابق پہلی رات کی نشست میں ہی کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ کب تک روانہ ہونا ہے سیدی؟ اس نے نواب صاحب سے پوچھا۔ جب تم تیاریاں مکمل کر لو۔ یہ ہمارے بچے آئے ہیں، ان کی خاطر مدارت ضروری ہے، ورنہ تیاریوں کا کیا ہے؟ تمہاری طرف سے میں ان کی کافی خاطر مدارت کر چکا ہوں، باقی راستے میں کر لیں گے۔ میرا خیال ہے تم فوری طور پر تیاریاں شروع کر دو، نواب صاحب نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر ہم پرسوں تک روانہ ہو سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد السعدی کے مکان میں ہم کافی آرام سے رہے۔ کوثر صاحبہ زران خانے میں تھی اور انہیں بھی سخت پردہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس دوران ایک بار بھی نظر نہیں آئی۔ اس دوران ہماری بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ تیسرے دن احمد صاحب نے بتایا کہ آج رات 9 بجے روانگی ہے۔ ہماری تیاریاں ہی کیا تھیں، رات کو ٹھیک 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ احمد السعدی کے ساتھ اس کا ایک قوی ہیکل غلام عبودہ بھی تھا۔
इस तरह हम पांचों बजरिया तैयारा लंदन रवाना हो गए। तवील सफ़र था। कौसर साहब फिर बेहिजाब हो गई थी। रास्ते में कोई ख़ास बात ना हुई और तैयारा लंदन के एयरपोर्ट पर उतर गया। यहाँ नए लोगों से मुलाकात हुई। कर्नल डिक्सन सुर्ख रंग का एक इंतहाई हंसमुख इंसान था। हालांकि सख्त सर्दी थी, लेकिन डिक्सन के पूरे खानदान ने एयरपोर्ट पर हमारा इस्तकबाल किया था। वो नवाब फरीदुद्दीन से बुरी तरह चमट गया और फिर इसने कौसर को भी खींच कर सीने से लगा लिया था। खुद इसके साथ बड़े हसीन चेहरे थे। तकरीबन 15 अफराद, जिनमें 3-4 नौजवान, 2 बूढ़े और बाकी औरतें थी। मेरी भी खूब पजीराई की गई थी और फिर लंबी लंबी कीमती कारों में एक काफिला कर्नल डिक्सन की रहायशगाह की तरफ चल पड़ा। बाद में मालूम हुआ कि कर्नल डिक्सन की रहायशगाह यूँ तो लंदन के एक बाराना इलाके में भी है, लेकिन इसकी देही कोठी एक इंतहाई खूबसूरत इलाके में थी और हम लोगों को इसकी कोठी में ले जाया गया। पुराने तर्ज तामीर की एक इंतहाई हसीन इमारत थी जो एक पुरफिजा और खूबसूरत इलाके में वाक़या थी। कर्नल डिक्सन के ज़ौक़ की मैंने भी दिल में दाद दी थी। एक कमरा मुझे, एक कमरा अहमद साहब और इनके मुलाजिम को, दूसरा नवाब साहब और कौसर को दिया गया। हमारे बराबर ही कर्नल डिक्सन की ख्वाबगाह भी थी। बड़ा ही लुत्फ आया। आज़ादाना माहौल, कहकहे बिखरे हुए थे। कर्नल डिक्सन के 7 लड़कियां और 2 लड़के थे। सिर्फ एक लड़की शादीशुदा थी जो अपने शौहर के साथ मुकीम थी। बाकी सब की सब गैर शादीशुदा और हंसने हंसाने वाली थी। हर वक्त कहकहे और नत नई तफरीहात। कौसर साहिबा माशाल्लाह फिर अपने रंग में मस्त हो गई थी। और लुत्फ की बात यह थी कि इन्होंने डिक्सन की एक साहबजादी को मेरी तरफ इल्तिफात से आगाह किया था कि मैं पहले इनका ड्राइवर था और अब इनके डैडी ने मुझे अपना सेक्रेटरी बना लिया। खूबियों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे घर के एक फर्द की सी हैसियत हासिल है, वरना मेरी असलियत कुछ नहीं है। और मैंने दिल में इनका शुक्रिया अदा किया था कि मेरी अहमियत इसके अलावा कुछ नहीं है। माशाअल्लाह, 2-1 बार इन्होंने मुझे झड़क भी दिया और मैं खुश था कि कोई हादसा रुनुमा होते होते रह गया। अजीब लड़की थी, वाकई बेहद अजीब। न जाने इसकी शख्सियत पर कौन से रंग मुसल्लत थे। तीसरे दिन कुछ और मेहमान भी आ गए। ये सब मुहिमजू थे। एक साहब फ्रांस से आए थे। 2-3 अफराद लंदन ही के थे। नवाब साहब भी इन लोगों में घिरे हुए थे, इसलिए अमूमन आजकल तन्हाई रहती थी। यहाँ शायद 10-15 रोज़ के क़याम का प्रोग्राम था, क्योंकि दूसरे लोग भी आ रहे थे। यहीं से ये पार्टी अफ्रीका रवाना होने वाली थी, लेकिन चौथे दिन एक काबिल ज़िक्र वाक़या रुनुमा हो गया। कर्नल डिक्सन के चौथे नंबर की साहबजादी मेरीसा अचानक मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। इनके यहाँ इश्क के अंदाज ज़रा मुख्तलिफ थे। परवाह तो किसी की थी नहीं। मैं इस वक्त कर्नल डिक्सन की कोठी के कब में खूबसूरत झील के किनारे एक पत्थर पर बैठा पानी में बनती बिगड़ती लहरों को देख रहा था कि मेरीसा वारिद हो गई। हेलो, इन्होंने अकब से कहा और मैं चौंक पड़ा। ओह हेलो मिस, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया। मेरीसा, इसने बताया। थैंक यू। आप तन्हा क्यों बैठे हुए हैं? वो बोली। कोई ख़ास बात नहीं है मिस मेरीसा। आपका नाम सरफराज है ना? जी। आपकी शख्सियत बेहद पुरस्कार है। जी, मैंने इसे देखा। सारे मशरकी पुरस्कार होते हैं। अंकल फिरोज़ भी मेरे लिए पुरस्कार है। डैडी कहते हैं वो बेहद अजीब इंसान है। जी, मैंने गहरी सांस ली। क्या पुरस्कार लोग दिलकश नहीं होते? शायद होते हैं। आप शायद मुझसे गुफ्तगू नहीं करना चाहते। अचानक वो तनक गई। अरे नहीं, आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? मैं चौंक कर बोला। आपके मुख्तसर जवाबात से। सॉरी मिस मेरीसा, इसके अलावा आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। सॉरी, आइए तशरीफ़ रखिए मिस मेरीसा। थैंक यू। वो दूसरे पत्थर पर बैठ गई और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सचमुच मिस कौसर के सर्वेंट हैं? हाँ, लेकिन आप तो बेहद स्मार्ट आदमी हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंकल फिरोज़ आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वो खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं। जानते हैं, इन्होंने अंकल हावर्ड को आपकी तरफ से चैलेंज कर दिया है। किस सिलसिले में? शतरंज में। अंकल हावर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। इन्होंने मास्को के टूर्नामेंट में 10 आदमियों से मुकाबला किया था और इन्हें शिकस्त दी थी। ओह, मैंने गहरी सांस ली। क्या आप इनसे मुकाबला करेंगे? नवाब साहब ने हुक्म दिया तो ज़रूर करूँगा, मैंने कहा। लेकिन दिल में मुझे थोड़ी सी उलझन ज़रूर हुई थी। न जाने हावर्ड कैसा खिलाड़ी हो। मैं तो सिर्फ अपने तौर पर खेलता था, किसी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी से साबका न पड़ा था। बहरहाल, आप अपने वतन की कुछ बातें करें मिस्टर सरफराज। मेरा वतन? मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरा वतन है। इसकी दिलकशी को कौन पा सकता है? क्या आप शादीशुदा हैं मिस्टर सरफराज? जी नहीं। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपको अपने बीवी बच्चे तो याद नहीं आते? वो हंसकर बोली। याद आने के लिए बीवी बच्चों के अलावा बहुत कुछ है। आपकी महबूबा? इसने सवाल किया और मुझे हंसी आ गई। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरी महबूबा भी अभी तक लापता है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक मैंने भी इसे नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? जैसे हुआ है, मैंने जवाब दिया। ओह, मैं समझी आपने अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की और ना मुस्तकबिल करीब में करने का इरादा रखता हूँ। मुझसे भी नहीं, इसने कहा और मैं पहुँच कर रह गया।
बड़ा डायरेक्ट सवाल था, बेहद अजीब। जाहिर है मुझे पसंद नहीं आया था। इसका जवाब भी क्या देता, खामोश रहा। मैं आपको पसंद करती हूँ सरफराज, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी जल्दी मिस मेरिसा? अभी तो हमारी मुलाकात को चंद घंटों से ज़्यादा नहीं गुजरी। मैंने ताज्जुब से कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ मोहब्बत ज़रा मुख्तलिफ होती है। सालों में जाकर कहीं मामलात इस्तवार होते हैं। वो फरसुदा अंदाज है। अफसोस मोहब्बत की जदीद तकनीक से अभी हम लोग नावाकिफ़ हैं। मैं सिखा दूँगी। अभी मुझे दूसरे बहुत से काम है मिस मेरिसा, वापसी में देखा जाएगा। नहीं अभी। वो पत्थर से उठ गई। अरे नहीं। मैं भी मस्खरे अंदाज में जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं अभी। वो मेरी तरफ लपकी और मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। तब झील के एक सिंध के दरख्त के पीछे से बहुत से कहकहे उभरे और मैं बुरी तरह ठिठक गया। लड़कियों का गोल दरख्त के पीछे से बरामद हुआ था और इनमें कौसर भी शामिल थी। क्या हाल है मादाम मेरिसा? कौसर जोर जोर से हंसते हुए बोली। इडियट, फूल। मेरिसा दांत पीस कर बोली। तुम शर्त हार गई। क्या समझी? तुम शर्त हार गई। कौसर बच्चों की तरह हंसते हुए बोली। उनका ख्याल था सरफराज साहब कि मशरिक के बाशिंदे मगरिब के मुकाबले में ज़्यादा औरत परस्त होते हैं। इनका कहना था किसी नौजवान को ज़रा सी लिफ्ट दो फौरन राम हो जाता है। ये बड़े दावे करके आई थी और अब ये शर्त हार चुकी। कौसर ने हंसते हुए कहा और मैंने सर पकड़ लिया। इलाही, कौन से खमीर से बनी है ये लड़की? क्या है ये? अब तो वो दर हकीकत मेरी निगाहों में पुरस्कार होती जा रही थी। सॉरी मिस मेरिसा, मैं भी शौक अंदाज में बोला। क्या इन लोगों ने तुम्हें पहले से होशियार कर दिया था? मेरिसा ने पूछा। अब तुम बेकार बातों पर आ गई। शर्त लगाने के फौरन बाद तुम चल पड़ी थी। हमारी इनसे मुलाकात कब हुई थी? कौसर ने कहा। आपकी इत्तलात गलत है मिस मेरिसा। हम लोग अब हुस्न और इश्क की दुनिया से निकल आए हैं। मैंने कहा। मैं नहीं मानती। तुम्हारे यहाँ औरत के सिवा और क्या है? अपनी क्लासिकल शायरी उठाकर देख लो, अपने यहाँ के सारे अंदाज देख लो, चारों तरफ औरत है, सिर्फ औरत। शायरों की बातें छोड़ दे मिस मेरिसा, औरत आपकी शायरी में भी है। वैसे अपने यहाँ के शायरों पर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन सब के लिए नहीं। मिस मार्लिन, देखिए मेरिसा चिढ़ गई। कौसर ने एहतजाज किया। मेरिसा, क्या हो रहा है? सीधी तरह शिकस्त तस्लीम करो। इसके बजाय ये मशरिक़ और मगरिब की बातें लेकर बैठ गई। हालांकि मैं भी सख्त जवाब दे सकती हूँ। ये तुम्हारा हक है कौसर, मार्लिन ने कहा। तब मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, हमारे यहाँ औरत का एहतराम है। वो एक कीमती जिन्स है, पोशीदा है, सड़कों पर उरिया नहीं हो गई। जबकि तुम्हारे यहाँ औरत एक आम सी शय होकर रह गई है। कौन इसकी तरफ तवज्जो देगा? मेरा ख्याल है गुफ्तगू तलखियों की हदूद में दाखिल हो रही है, इसलिए इसे बदल जाना चाहिए। हम आपसे मुत्तफिक हैं मिस्टर सरफराज, दूसरी लड़कियों ने कहा और मेरिसा खिसियानी हो गई। लेकिन मेरी तरफ इसने बड़ी खूनखार निगाहों से देखा था और मैंने सहमने की अदाकारी की। मेरिसा शर्मिंदा सी रही। लड़कियों ने मौजू बदल दिया था। लेकिन रात डिनर के बाद जब सब लोग मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल हो गए तो मैं भी सबसे अलग थलग कहीं बाग में निकल आया। मशहूर कुन खुशबू चारों तरफ रखसा थी। आसमान बादलों से ढका होने की वजह से हवा नम थी। बाग के गोशे में पड़ी हुई संगमरमर की बेंच पर बैठकर मैंने गहरी गहरी सांसें ली और जहन माजी की तरफ पलट गए। कैसा अनोखा माजी था मेरा और कैसा अजनबी लग रहा था। क्या वो मैं ही था, लाबाली, बेफिक्र, सैर व शिकार का शौकीन, सरबुलंद रहने वाला? क्या वो सरफराज ही था? बहरहाल ड्रामाई अंदाज में सोचना हमाकत था, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा था वो भी ड्रामा नहीं था। ये बात तो जहन में पुख्ता हो गई थी कि अब घर वालों से हमेशा के लिए राब्ता मुनक़ता हो गया। अब तो न जाने कौन सी ज़िंदगी मुंतज़िर थी। हाँ, दिल में एक उमंग ज़रूर थी, वो ये कि ज़िंदगी को किसी ऐसे डगर पर ले जाऊँ जहाँ कोई महरूमी ना हो, और यही तस्वुर सहरागर्दी पर मजबूर कर रहा था। अफ्रीका, पुलिसराज दास्तानों की सरजमीन, देखिए मेरे लिए कौन से गुल खिलाती है। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।